Namaste, this is Savni Shetye. I'm an archaeologist and I'm currently on a journey to visit many places in India and discover their rich heritage and the cultural legacy that we all have. It may be through our temples, through our art forms, through our cuisine, through our different cultural expressions that we have. When you start your journey of visiting cultural places in Bharat, even one village is compared to one university level. One art style can present you so much of information, so much of knowledge that 1,000 museums will not be enough to present rich history of Bharat. So the Konkan region has always been traditionally a rich area, rich in many ways. It is blessed by nature's bounty. It has many cultural experiences that one person can experience here, right from the storytelling to the folk art to many customs that we see here, and the variety and the diversity of even the folk traditions that one can experience in this region. Today I am visiting a place called Pinguri. It is in Kudar, which is very close to Goa. It is half an hour's drive from Goa-Maharashtra border, and this is a place which is a community driven or a family run museum. So most of the times we visit museums which are curated by say a collection of vintage collection or an archaeological museum, wherever places which are recovered, say sculptures or broken artifacts, are brought and kept in a museum. This museum that I am visiting today, it is run by the community with only intentions or pure intentions of passion towards their art style. So this used to be a cowshed and that is now turned into a museum with only one intention of promoting and displaying the rich cultural heritage that they have with them and which is passed on to them as a legacy. So today we have with us Shri Chetan Gangavne ji. He is the curator of this Thakar Adivasi Kala Manch. So they have a museum here which showcases different tribal cultures and the paintings of Chitrakati. And recently, a few years ago, his father has received a Padma Shri award from the Honorable President of India. Namaskar, my name is Chetan Parshuram Gangavne. So our community has basically 11 traditional art forms, and somehow these art forms was getting in a stage where this art form was a dying art forms. So our family and my father has taken an initiative that we have to revive this art form. And then my father has started with a small museum called as Thakar Adivasi Kala Angan Museum and Art Gallery, which we have started in May 3, 2006. And for that, my father has been honored with a Padma Shri in 2021 in the field of art. So basically we have started with a small museum, and in that museum we have displayed our 11 traditional art forms. Because somehow here we see that the traditional art forms are not getting that much value. और हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये जो कला है, ये आज की युवा जो पीढ़ी है, ये आगे ले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है. So in 2007 only we have started with a small website, and that website name is www.pingolichitrakatiart.com. आज भी आप अगर गूगल पे सर्च करोगे पिंगोली चित्रकति, then directly my website will be there. सो पहला हमने इनिशिएटिव लिया कि ये आर्ट फॉर्म ग्लोबली लोगों तक पहुँचे, इसलिए हमने पहले वो वेबसाइट की शुरुआत की. एंड देन वी स्टार्टेड विद दिस सोशल प्लेटफॉर्म, फेसबुक है, इंस्टा है, ये तो अभी के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. तो मुझे लगा ये जो कलाएँ है ये अपने महाराष्ट्र या अपने विलेज के भी बाहर जाने चाहिए. जैसे इन दिल्ली में इसके शोज़ होने चाहिए, उड़ीसा में होने चाहिए. हमने तो बिफोर पैंडमिक हमने नागालैंड कोहिमा में जाके पपेट शो का परफॉर्मेंस करके आए. इतना बड़ा ब्रेक हमको मिला था. इस तरह से हमने इस कला को थोड़ा सा विलेज से बाहर निकाला, मंदिरों से बाहर निकाला. और मैं और मेरे बड़े भाई और हमारी पूरी फैमिली एंड माय टीम, हमने ये इनिशिएटिव लिया कि ये कला को ज़िंदा रखेंगे. So this belongs to the Thakar community, which were traditional storytellers, they were singers, and they have a great legacy of intangible heritage. Tangible heritage is a heritage that we can see and feel. Mostly to safeguard it can be protected through museums or something like that. But the real heritage is the connect between the man and its monument. Tangible heritage could be your coins, your jewelry, temples, or any big architectures or sculptures. But intangible heritage is the customs connected to it or the stories connected to it. Intangible is something that you cannot touch.
it is there, it could be even knowledge. So that you cannot just preserve in museum. So when we visit as a visitor, we don't experience the knowledge in complete form. So tangible here could be the painting or the puppet, but when the person from the community narrates you the story in the traditional way, your experience is a complete experience. So where you experience not only the tangible but intangible. So if we have an instrument called as ghummat in Goa. So if you keep a ghummat, to protect a ghummat, if you keep it in a museum with nice lights and glass and everything, but you don't have anybody performing it, what is the whole point? There is no point in just keeping a pot which is open on two sides. After many generations, people may not even know what this ghummat was called as. So here we see that in this museum, they have promoted and protected their own the traditional paintings that they have, and the member of the family takes you around the museum and he tells you the stories connected to that. So this I feel will give a visitor a complete experience of experiencing this traditional art style. In most of my videos about Kavi art or art of Goa, I have mentioned the art style of Chitrakati. So we met Chetan Gangavne ji, who was an IT professional. He has come back to his ancestral roots and promoting Chitrakati through this museum form. So I would request Chetan ji to take us around the museum and tell us something about whatever collection they have here. तो एक्चुअली हम लोग जब देखते हैं कि म्यूज़ियम मतलब कोई एक बड़ा ये रहता है, और वो हमेशा क्या होता है कि जब भी मैं मुझे बचपन से म्यूज़ियम का इंटरेस्ट रहा है, तो जब भी मैं जहाँ कहाँ पे भी जाती हूँ, म्यूज़ियम एक ना एक तो विज़िट करती हूँ. बट इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस टू विज़िट अ म्यूज़ियम विच इज़ एट द कम्युनिटी प्लेस, कि उसका वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है और जो कोई वो कम्युनिटी से वही बता रहे. क्योंकि बाकी हम लोग आर्कियोलॉजी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मतलब आर्ट हिस्ट्री में, पर जो एक्चुअली उसका प्रोफेशन है तो उनके पास जो एक्चुअल नॉलेज रहता है, जो ट्रेजर है, तो उन्हीं के पास होता है. सो वही है कि ये जो आर्ट म्यूज़ियम है वो हमने हमारे गांव में ही बनाया और हमारे खुद की लैंड में बनाया, बिकॉज इट वाज अ काउ शेड बिफोर 2006. इस काउ शेड के म्यूज़ियम में सिर्फ आपको हमारी समाज की पारंपरिक लोक कलाओं का दर्शन होगा. ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम ठाकर कम्युनिटी, इट्स अ ट्राइबल कम्युनिटी, और ये जो हमारी ठाकर कम्युनिटी है, हमारे कम्युनिटी के सिर्फ आर्ट फॉर्म्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं. सो द फर्स्ट आर्ट फॉर्म हियर वी हैव इज चित्रकति. चित्रकति, ये नाम में सब कुछ छुपा हुआ है. चित्र मीन्स अ पेंटिंग एंड कथा मीन्स अ स्टोरी. पेंटिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग, and the stories are based on mythological stories from Ramayana and Mahabharata. So these paintings has been made on a handmade paper, and the colors which we have been used at that time are all natural colors, vegetable colors. And also one more thing, in these colors we can see we have used only 3 basic colors or a primary colors: red, green and blue. But now as per the time change, our generation has taken a little bit change in the painting style, means we use red, different palettes, mean Indian red, light red, dark reds, such type of paintings. So that we have changed, but the form is same, the style of painting is same. And in this painting you can have a look that यहाँ पर आपको थोड़ा सा महाराष्ट्रियन कल्चर देखने को मिलेगा. मीन्स हियर वी हैव नववारी साड़ी, दैट earrings, नथ. Also here we have that red वाला tika, so bindi, bangles in both hands. So थोड़ा सा महाराष्ट्रियन कल्चर in this Ramayana painting also we can see. साइज ऑफ चित्रकति पेंटिंग वॉज 12 by 15 इंच और 12 by 18 इंच. इससे बड़े हमारे चित्र नहीं बनते थे. एंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ दिस आर्ट फॉर्म इज वीणा, ताल एंड हुडुक. हुडुक इज सेम लाइक अ डमरू, शंकर जी का डमरू. बट ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वी हैव टू टेक लाइक दिस, और इसको सिर्फ ऐसे बजाना. इसे ऐसे सिर्फ बजाता है, इसलिए इसको लोकल वर्ड में हुडुक करके नाम है. और ये तीनों भी आर्टिजन नीचे बैठेंगे. इन फ्रंट ऑफ देन द मेन आर्टिजन जो है चित्रकति परफॉर्मेंस करने वाला, द मास्टर आर्टिस्ट, ही विल कीप दैट पेंटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज लेग्स, एक प्लाई लेके वगैरह ऐसा, और उसके सामने वो चित्र रखेगा. एंड दैट चित्र
वो जो ऑडियंस है वो देख रही है, एंड ऑन दैट चित्र दे विल बी टेलिंग अ स्टोरी। और रामायण की भी अलग अलग खंड है ना, अरण्य खंड है, युद्ध खंड है, बाल खंड है। तो इस तरह से एक कोई खंड, एक कोई पार्ट ऑफ चित्रकथी का रामायण का परफॉर्म करना है। फॉर दैट वी नीड 25 to 30 पेंटिंग्स का एक सेट, दैट वी कॉल्ड एज पोती। और वो पोती राइट साइड में रखना है, 1 by 1 पेंटिंग निकालना है, सामने रखना है, एंड ऑन दैट वी हैव टू टेल द स्टोरी। तो इस तरह से ये स्टोरी टेलिंग्स किया जाता है। एक आर्ट फॉर्म हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं पांगुड़ बैल। इन महाराष्ट्र वी सी और कर्नाटका ऑल्सो वी सी नंदी बैल लेके आते, बड़े बड़े बैल लेके आते हैं। तो उसको डेकोरेट करने के लिए, उनको पूरा सजाने के लिए ये सामान का यूज़ होता है, जिसको हम भाशिंग बोलते हैं। घाट, ग्यास, द्यास, उपलान, कानौटी, और ये सारा सामान डाल के बैल को सजाया जाता है। और कुछ इस तरह से बैल को सजा के हमारे लोग ये गांव गांव पे घूमते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म हमारे कम्युनिटी में बोली जाती है, गोंदड़। यह महाराष्ट्र में बहुत ही पॉपुलर है गोंदड़ आर्ट फॉर्म। भवानी देवी का, माता अंबाबाई का वगैरह पूजा की जाती है। ये जो आर्ट फॉर्म है, ये हमारे कम्युनिटी में भी लोग हैं जो ये आर्ट फॉर्म परफॉर्म करते हैं। और इसका हिस्ट्री ऐसे है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक मालवन में सिंधुदुर्ग फोर्ट है, जो पानी के बीचों बीच है, और वहाँ पर एक भवानी देवी का मंदिर है। और उस मंदिर में एट द टाइम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज 350 ईयर्स अगो, वहाँ पर जो पहले जो गोंदड़ का परफॉर्मेंस किया गया उस भवानी देवी के सामने, वो हमारे समाज के लोगों ने किया गया है। तो आज भी 350 साल हमारी ही समाज के लोग वहाँ पर जाके ये परफॉर्मेंस करते हैं। तो इस तरह से इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म ये हमारी कम्युनिटी में आज भी देखने को मिलेगा। आर्टिजन का कॉस्ट्यूम में भवानी देवी की मूर्ति है, संबल इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड दिवटी मीन्स मशाल। सो ये इस तरह से ये छोटा सा गोंदड़ का हमने सेटअप डिस्प्ले किया हुआ है। So every time, even when I have taken you to some temples or temple sculptures, I have mentioned that there was always used to be a sutradhar. Whenever we travel to a place like places like Verud or Khidrapur or Badami caves, there are so many sculptures and we get confused how to know the stories. So there are guides or people like me who are doing it through YouTube, and this is the same tradition of being a sutradhar. So the next art form here we have is called as string puppetry, और हिंदी में वी कैन से कठपुतलिया, एंड इन मराठी वी से कळसूत्री बावल्यांचा खेळ। सो दिस स्ट्रिंग पपेटरी हैज़ बिन मेड विथ वुड, और ये जो शिवन और ये सागवान का जो लकड़ी होता है ना, वो लकड़ी से ये पपेट बना है। सो आवर पपेट डोंट हैव लेग्स, कंबर तक ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर रहता है। एंड देन वी हैव दिस घाघरा टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम। इन आवर स्ट्रिंग पपेटरी वी डोंट हैव नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑल्सो। We have 2 strings to 2 of their hands and 1 string at the top of his head, और तीनों भी स्ट्रिंग्स को इस तरह से एक स्टिक को लगाई दी। Then this puppet has been taken in our hand, और ये पपेट को ऐसे नचाते हैं। हमारे पपेट्स को पैर न होने के कारण ये पपेट बैठ सकती है, और अगर मुझे बात करनी है तो सिर्फ ये एक हाथ हिलेगा। इफ आई वांट अदर हैंड, ऐसे दोनों भी हाथ चाहिए तो ऐसे। दोनों हाथों में 2 पपेट्स रहेंगी, इन वन हैंड ये वाला ऐसा और ये वाला ऐसा। अभी आपने जो बोला कि सूत्रधार करके जो रहता था हर एक शोज में, सो इन दिस स्ट्रिंग पपेटरी ऑल्सो वी नीड अ सूत्रधार, बिकॉज ये अपने हाथों की धारों से ये पपेट नचाता है, इसलिए इसको सूत्रधार बोलते हैं। और ये पपेट डांसिंग करने वाला जो पपेटर रहता है वो अंदर रहता है, एक बॉक्स टाइप स्टेज रहता है, और बाहर की जगह पर 3-4 आर्टिजन्स बैठेंगे विद अ लाइव परफॉर्मेंस। वी टेल द स्टोरीज फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। और ये इस तरह के 200 से 300 साल पुराने पपेट्स आज भी हमारे फैमिली के पास ही आपको देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज़ राजा दशरथी, द नेक्स्ट वन इज़ लक्ष्मण, रघुत्तम राम, गणपति, सरस्वती माता, राजा जनक, विश्वामित्र स्वामी, एंड हियर वी हैव वन राक्षसा। So the next art form here we have is called as shadow puppetry or a leather puppetry. In Marathi we say चांबड्यांच्या बावल्यांचा खेळ। ये जो आर्ट फॉर्म है ये आपको इंडिया के सिर्फ 6 राज्यों में देखने को मिलते हैं। सो ये जो पपेट्स होते हैं तो ये पूरे गोट लेदर के ऊपर बने रहते हैं, और हमारे पपेट्स में ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होते, या हमारे पपेट्स ज़्यादा बड़े नहीं होते एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स। सो आफ्टर दैट ये पूरा ड्राई लेदर यूज़ होता है, जो हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हैं वो वाला लेदर।
So on that leather we draw paintings, and the paintings are from Chitrakati only, that Ramayana Mahabharata characters. After drawing we make cuttings. After cutting we make punching holes on the ornaments, on the clothes, wherever we need the designing work we make punchings, and then we put a small stick here, और वो stick हाथ में पकड़ के what type of shadow comes I will show here. See, such type of shadow comes, and then we have to dance this puppet like this. So my light source is fixed, only the puppet has been dancing. And then if I want to exit this puppet I will do like this, now. So ये just a small demo with a mobile source, but the actual light source is oil lamp. There will be a big stage, in front of that there will be a white screen of धोती कपड़ा या मांझर पाट, और उसके पीछे से वो artisans they will be having that shadow puppets, और एक लाइट सोर्स यानी दिया, और वो दिया के सामने ये पपेट को डांसिंग करेंगे, एंड दैट पपेट का शैडो, कलरफुल शैडो आपको इस स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेंगी इस तरह से. एट द टाइम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज अ गॉड फादर फॉर अस. उन्होंने आर्ट फॉर्म को रिवाइव किया, उन्होंने आर्ट फॉर्म को प्रमोट किया, उन्होंने हमको जंगल से बाहर निकाला. बिकॉज यहाँ से आप देखने जाओगे तो 20 किलोमीटर्स पे सह्याद्री माउंटेन्स है, वेस्टर्न घाट्स, और उस वेस्टर्न घाट्स में हमारा ये समाज रहता था. हम बड़े बड़े पत्तों के ऊपर ये चित्र बनाते थे. देन छत्रपति शिवाजी महाराज हैज़ गिवन अस अ हैंडमेड पेपर. ये जो पेपर है वो 300 से 350 साल पुराने चित्र आज भी हमारे फैमिली के पास है. अभी हमारा म्यूजियम छोटा है इसलिए हमने 17 पेंटिंग डिस्प्ले किए हुए हैं, बट वी हैव 1000 ओल्ड पेंटिंग्स इन अवर कलेक्शन. 1000. एट द टाइम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वी वॉज टू गो टू द टेम्पल्स एंड वी हैव टू परफॉर्म फॉर 9 days. एट द टाइम ऑफ नवरात्रि फेस्टिवल छत्रपति शिवाजी महाराज हैज गिवन अस अ टेम्पल कॉल्ड एज केळबाई देवी. यहाँ पे कुडाल में केळबाई देवी का मंदिर है. There we have to go for 9 days and continuously we have to perform from night 10 o'clock to morning 5 o'clock. तो इतना टाइम रामायण का स्टोरीज बताना है, संपूर्ण रामायण. एंड एट द सेम टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए हम स्पाई का काम करते थे. तो ये आर्ट फॉर्म लेके हम किसी गांव में जाते थे, महाराज के बारे में अच्छा बुरा जो कुछ बोल रहा है वो हम सुनते थे, और वो सारे स्पाई का काम करते वक्त उन लोगों के माध्यम से हमको कुछ दान मिलता था, वो दान लेके हम हमारी रोजी रोटी चलाते थे. और आपने जो बात कही कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये आर्ट फॉर्म को बड़ा किया या फिर इनको पेट्रोनेज, जो रॉयल पेट्रोनेज चाहिए था वो दे दिया. बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि शिवाजी महाराज ने क्या किया. मतलब जब भी हम बाहर जाते हैं तो बाकी जो आर्ट फॉर्म्स या फिर जहाँ पे बाकी हम दुनिया में भी जहाँ पे भी जाएंगे तो हम लोग जो भी राजा का देखेंगे एक बहुत बड़ा महल देखेंगे या फिर कुछ तो लग्जरी रहेगा, ग्रैंड रहेगा. छत्रपति शिवाजी महाराज का हम ये नहीं देखते, पर उन्होंने जो किया कि यहाँ का हर जो कोई नागरिक है जो आर्ट कम्युनिटी से हो या फिर कृषि कम्युनिटी से हो, उसको उन्होंने बड़ा किया. शिवाजी महाराज खुद ग्रैंड तरीके से नहीं रहे, पर जो भी उनकी जो प्रजा थी उनको बहुत मतलब उनका पूरा लाइफ ही चेंज कर दिया. तो इसीलिए मुझे लगता है कि एज अ परफेक्ट राजा कैसे हो, तो उनका ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट उन्होंने किया है, ये सब उनका कंट्रीब्यूशन का एक एविडेंसेस है. जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का लाइफ एंड टाइम जो पढ़ा है या फिर उनका कार्य पढ़ा है, तो जब भी आप मतलब कोई जब छत्रपति शिवाजी महाराज की बोलता है वो जय अपने आप से निकल जाता है. वो हम लोग इतना बाकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतने किंग्स को वो नहीं आता, पर वो छत्रपति शिवाजी महाराज का वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है. तो ये उसका बहुत बड़ा एविडेंस है. नमस्कार. म्युझियम बांधायची संकल्पना सुचली कशी म्हणायचे म्हटलं तर सर्वप्रथम माझ्याजवळ माझं ओरिजिनल म्हणजे कुठूनही कोणतीही गोष्ट आणलेली नाही, आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या स्वतःच्या होत्या. अशा टोटल 11 लोककला ह्या सगळ्या माझ्याकडे ओरिजिनलच होत्या. पण असे पण पर्यटक माझ्याकडे यायचे
JJ मुलं येत आहेत, FANEDची मुलं येत आहेत, सगळी मुलं इथं ह्या ठिकाणी इथे येऊन दाखवायचं. मी त्या धुळीत बसायचो, मातीमध्ये बसायचो आणि सगळे त्यांना हे सगळं दाखवायचो. मग ते लोक म्हणायचे, अरे याचं काहीतरी झालं पाहिजे होतं, मोठं म्युझियम वगैरे झालं पाहिजे, एवढी तुमच्याकडे आर्ट जुनी आहे, एवढं पेंटिंग आहे, हे आता विकत पण मिळणार नाही कुठे, करणार एवढं नक्कीच. आणि ते माझ्या डोक्यामध्ये परमनंट होतं. मग असं आणखीन एक पर्यटक आला, तो म्हणाला, टुरिस्ट म्हणतात, अरे तुमच्याकडे आहे तर तुम्ही स्वतःचं करा. मग मी असं केलं की माझा गुरांचा जो गोठा होता, ते गुरं, माझा ॲक्सिडेंट झाला आणि ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर माझ्या गुरांच्या गोठ्यामध्ये मी तो नीटनेटका केला. ह्या 11 लोककलेचं संगोपन ह्या म्युझियममध्ये मी केलं. 2003 मे 2006ला त्याचं ओपनिंग केलं. आणि त्यावेळेला ते प्रभाकर फणशीकर, तो मी नवे नाटककार प्रभाकर फणशीकर, विजया मेहता, अशी लोक, दिग्गज लोक येऊन, कलेक्टर वगैरे येऊन त्यांनी याचं उद्घाटन केलं. आणि शेवटी जाताना ते म्हणाले, प्रभाकर फणशीकर, गंगावणे साहेब, तुम्ही असं समजू नका, ही भीक मागी कला समजू नका, ही कला फार मोठी आहे आणि जगातले माहेरी ह्या कलेच्या, हे कलेचं माहेर आहे, माहेर. इथं या माहेरी लोक देशातून, परदेशातून, सगळीकडून लोक इथे येतील. सगळ्यात महत्त्वाची सांगायची गोष्ट म्हणजे काय, की दोन्ही मुलं माझ्याबरोबर असल्यामुळे माझी ही कला चांगली, म्हणजे आज ह्याला वरच्या लेवलला पोचली. कोरोनामध्ये आमची अशी परिस्थिती आली होती की आम्ही आता जगायचं काय मरायचं, अशी आमची परिस्थिती आली. परंतु माझ्या मुलांनी, दोन्ही मुलांनी माझ्या ऑनलाईन वर्कशॉप चालू केले, ऑनलाईन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुठे कुठे म्हणजे जगात. आणि त्याच्यातून आपलं ही कला जिवंत राहिली, कला जिवंत राहिली. कलेने मला सोडलं नाही आणि कलेला मी सोडलं नाही. आणि म्हणून आज एवढा मोठा, आज भारताचा सर्वोच्च जे पद्मश्री पुरस्कार जो मिळाला, याला कारण ते आहे. म्हणून नेहमी माणसाने एक ठेवावी, की दूरदृष्टी ठेवावी. जर स्वप्नच जर मी बघितलं नसतं, आज जो मला पद्मश्री मिळाला, तो मी नुसत्या महाराष्ट्राचं म्हणत नाही, तर भारताचं पण मी कौतुक करतो. भारत सरकारने पुरस्कार दिला, तो जिल्ह्यातल्या एका मुलाला मिळाला ना, महाराष्ट्रातल्या एका मुलाला मिळाला ना. म्हणजे हे केवढं मोठं भाग्य समजायचं आपण. म्हणजेच काय, आपल्याकडे जे होतं ते तुम्ही जर टिकवण्याचं जर काम केलं तर नक्कीच तुम्ही सफल व्हाल, असं मला वैयक्तिक स्वतःला हे वाटतं. सो म्यूज़ियम की शुरुआत में हमने यहाँ पर क्या किया कि एक छोटा सा हमने एक ठाकरे हाउस बनाया है. सो इन दैट ठाकरे हाउस हमने, मेरी दादी माँ है, मेरे दादाजी है, और उनके हमने स्टैचूज़ बना के रखे हुए ताकि इनकी याद हमको हमेशा रहती. क्योंकि मेरे दादाजी, ही वॉज अ बिग आर्टिस्ट एट दैट टाइम, कि इनका अगर गाना शुरू हो जाता है तो कम से कम आधा किलोमीटर तक तो गाना सुनने आता था. बिकॉज एट दैट टाइम साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन कुछ नहीं था ना. मंदिरों में वो परफॉर्मेंस करते हैं एट द टाइम ऑफ 10 o'clock 10:30 रात को, तो पूरा शांति होता था. और मेरी जो दादी थी ना, वो इतना सुंदर गायन करती थी. तो आपको मालूम होगा कि गोवा स्टेट में भी और महाराष्ट्र स्टेट में जो पारंपरिक डांस होते हैं, जिसको हम फुगड़ा बोलते हैं, डोना वाद्य जो बोलते हैं, डोना गीत बोलते हैं गणपति के टाइम में, तो ये कहने वाली मेरी नानी थी. तो मेरी दादी को गाड़ी रत्नागिरी से आके लेके जाती थी कि आप हमारे आकाशवाणी से ये गाने लोगों तक पहुँचाइए. सो एट दैट टाइम वो फुगड़ी का गानी, डोना की गानी, हम जो तरवा लगाते हैं ना, राइस प्लांटेशन करते हैं, उस टाइम में जो गाने बोलते हैं महिलाएं, उसके गाने हो, या हम पालना गीत जिसको बोलते हैं नेमिंग सेरेमनी के टाइम में जो. सो अलग अलग टाइप के ये जो गाने हैं, ये बोलने के लिए उसको वहाँ पे लेके जाते. तो वो दोनों भी आर्टिजन थे एंड वो ही फैमिली ट्रेडिशन मेरे पिताजी में वो आ गया. और हमने उनकी याद में हमारे ही जो घर में जो पुराने सारे जो चीज़ें थी, वो हमने यहाँ पे कुछ कैप्शन करके लगाए हुआ है. क्योंकि आजकल की जनरेशन को ये चीज़ें मालूम ही नहीं है. देन वी हैव फार्मिंग के कुछ चीज़ें, हमने नांगर है, रुमनी है, इशाड़ है. उसके बाद में फिशिंग ये हमारी कम्युनिटी का बहुत ही एक हॉबी. सो यहाँ पर हमने ये कंडाली रखा हुआ है, फिशिंग नेट है, जिसको मराठी में हम कंडाली बोलते हैं. देन वी हैव नांगर, रुमनी, इशाड़, ये शिपना है. उसके बाद वाइन मुसड़ है. यहाँ पे ये खून है, जो हम ये फ़िश वगैरह पकड़ने के लिए, क्रैब पकड़ने के लिए ज़्यादा इसका यूज़ होता है. देन हियर वी हैव दैट पालना, वो नेमिंग सेरेमनी के लिए जो हम झूला यूज़ करते हैं, हाँ वो है. देन जाता है यहाँ पर. देन वी हैव शेवगा, ये आपने देखा होगा, आपके गोवा में भी आपको ये देखने को मिल रहा है, शिरवड्या, और यहाँ पे महाराष्ट्र के बॉर्डर में भी देखने को मिलता है.
तो इसके अंदर ये हम जो अपना राइस का आटा बॉईल करके डालते हैं और ऊपर से प्रेस करने के बाद ये राइस नूडल्स जिसको हम बोलते हैं शिरवड़ा रस, तो ये मिल जाता है इसमें से। उसके बाद में हमने कुछ पॉटरी सेक्शन भी रखा हुआ है जिसमें जो मिट्टी के अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते थे, मडके हैं, सोरकुल, मालती, कोली, बुड़कुला, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पर हमने डोना रखा हुआ है, डोना जो हम डवले, गोवा में दवले मांड। डवले, हाँ डवले मांड। सो वी हैव डवले ऑल्सो, लेकिन वो म्यूजियम में है। ये कुडू है, ये मेजरिंग, जैसे 1 पायली 2 पायली हम जो राइस माप होता है ना, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। एंड ऑन द वॉल यू कैन सी, ये हमने हमारे जो गांव की या हमारे घर की जो महिलाएं होती थी, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए 3 फिंगर्स राइस पाउडर के पानी में मिक्स करके वो ऐसे ड्राइंग्स करते थे और उससे अपने घर को डेकोरेट करते थे। सो वी कैन ऑल्सो सी दैट कि मतलब जस्ट इन लिटिल बिट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि अभी हमें लगता है कि बहुत आर्ट पेंटिंग चाहिए होगा, कैसे किया होगा, अभी तो मतलब महाराष्ट्र गोवा में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था तब, तो सिंपल राइस पेस्ट लेके उन्होंने अपना आर्ट बनाया। मतलब ये जो दवले मांड है वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये जो औरतें थी उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे पर कला थी, तो जो अपना ट्रे है उसी को उल्टा डाल दिया, जो स्पून है अपना सर्विंग लेडल उसी को लेके म्यूजिक उसमें उस इंस्ट्रूमेंट बना दिया। तो वही था कि उस टाइम में महिलाएं सिर्फ अपने किचन में अपना वो खाना बनाना है और उनका रेगुलर शेड्यूल्स होता था, बट उसी में किचन में रहने वाली चीज़ों को ही लेके उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया, खुद का एक मनोरंजन का साधन बनाया। ये बहुत ही ज़रूरी है और ये आर्ट फॉर्म को हमें आगे भी लेना जाना है, इसलिए हमने आकाशवाणी में इसका रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है। पूरा नेशनल फोकलोर सपोर्ट सेंटर में हमने एनएफएससी को ये डोना वाद्य का परफॉर्मेंस करके आए हैं, तो ये आर्ट फॉर्म भी हमने आगे ले जाने के लिए प्रयास किया हुआ है। As we are moving towards rapid development, things are changing fast way. So cultures are becoming same. What I'm experiencing, what I'm doing, what I'm wearing, even what I'm watching or what content I'm consuming in Goa is somewhat maybe similar to somebody doing that in maybe some streets of Europe or maybe USA. So cultures are becoming, like they're saying, one global village. But at the same time, there are many youngsters who are trying to promote and protect their traditional legacies. It is considered that you get a birth of a human after traveling through many yonis or through different creatures. It is very lucky to be born as a human, and it is a pure divine coincidence that if you are born as a human in the land of Bharat. Each and every place here has so much of rich history to present to the world. There are so many people here, especially our artisans, they are master craftsmen. And so many years they've always been neglected, they never got the promotion that they deserved. We know many of the times we know artists from US and Europe. We know the modern artists, we know actors, and we go crazy about them. But there are so many people who have the legacy of generations. There are so many stories and we don't even know them. They are in our backyard and we don't know them. So using social media or using digital media, using digital knowledge, people like this need to be promoted. We need to promote art styles like this and make this place as a thriving place where you can experience these living traditions. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji always says Virasat bhi aur Vikas bhi. And with this intention in mind, they have started People's Padma, where people like these who are protecting real heritage and real traditions are being promoted and given Padma Shri awards. So gestures like this promote this art style, and after that they've seen like many people are visiting, coming here from NIFT, IITs, IIMs are coming here and studying, documenting this art style. I think this is a perfect example where you promote Virasat and you do Vikas of the local economy.